Great evening, one and all. Thank you so much for joining this question answer session. So let us start our session with the question of Bhakti ma'am. Let me put her in the spotlight. Great. Go ahead, ma'am. Yeah, actually, yesterday I met my friend. So I was telling her about the conscious and subconscious mind, Yeah, uh, which I uh, which I got received knowledge from you. yeah, I was when I was making her understand about the subconscious knowledge and all negative vibes, and so she was telling me that I'm not getting that positive vibes from anyone. yeah, Even everyone is craving for that positive vibes, and people are not able to get that from people or from surroundings yeah, sometimes. So why this is happening with the people nowadays? yeah, Why they are craving for so positive vibes, yeah. every one of them. सी अभी एक्चुअली कैसा है कि हमारे जिंदगी में जो भी लोग आएंगे, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है, वो हमारे वाइब के ऊपर डिपेंडेंट है. द काइंड ऑफ ऑरा यू हैव, द काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू हैव, द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू हैव, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट. अगर आपको जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, यू नीड टू गिव दैट फर्स्ट. और इसके लिए एकदम आसान तरीका क्या है? द सिंपलेस्ट वे बाय विच यू कैन अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, बाय यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स. whenever you Yeah, meet people, so you just tell your friend कि आज के बाद आप जब भी लोगों से बात करेंगे, make sure you say great morning, great afternoon, great evening. Whenever people will ask you how are you, make sure you say I'm awesome, I'm fantastic, I'm great. आपके फ्रेंड को ये भी बताइए कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जो भी स्टेटस, स्टोरीज, पोस्ट आप शेयर करते हो, मेक श्योर दोज आर इंस्पायरिंग. yeah, वो क्या कर सकते हैं, आपके जो दोस्त है वो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं. इवन यू कैन डू दैट. यू कैन फॉर्म अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स. ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप तभी बना पाते हैं जब आपका नंबर किसी के पास सेव्ड है. आपका नंबर अगर किसी के पास सेव्ड नहीं है तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बना सकते. सो आपके क्लोज फ्रेंड्स की yeah, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, और वहां पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या फिर कोट्स या फिर जो कुछ मैं आपको शेयर करता हूं, कुछ पावरफुल चीजें हैं, तो वो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ. एंड दिस इज हाउ यू कैन फर्स्ट गिव द पॉजिटिव एनर्जी. अगर आप दोगे तो रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाओगे. हैव यू गॉट द कंसेप्ट? yes, yes. या, And ग्रेट. second, या, गो अहेड. and second thing, it's my suggestion that today I just googled that when is the appreciation day or world gratitude day. So hopefully and fortunately it is coming in the next month, that is on वाओ, 21st September. So वाओ. we can do something on that day, or we can have some concept, or we can have some theme basis on World Gratitude Day, because no one knows, everyone knows Environment Day and everything, but या, World Gratitude Day no one knows. So अमेजिंग. I think you should lead that. Yeah, amazing. Thank you so much. Thank you Yeah, so yeah, much. I really appreciate your suggestion. Even I yes, wasn't yes. aware. Even I never thought such kind of days existing. You did No, the research. Yeah, I thank you just so much. Googled when I Yeah, was I really getting appreciate that. this. I never had that Yeah, yeah, idea. So definitely we will do something. I will yes, mark in my yes. calendar right now. So, and we will do something unique and phenomenal on the Yeah, 21st yeah, of September. Yeah. yeah, yeah, Thank yeah. you so much, Bhakti ma'am. God bless you. Yes, God bless you. yeah, yeah. Go ahead, my dear friends, and ask your question. Go ahead and ask whatever you want. Just raise your hand. I will put you in a spotlight. So there is a great fun coming in a spotlight. Whole world is watching you. And this video is going to go on YouTube. So whole world is going to watch you across all 24 hours. 24 into 7, you are there on YouTube and Google, everywhere. So there is a great opportunity to become a celebrity. So Bhakti ma'am grabbed it with the both hands, asked two phenomenal questions. One question was there, one suggestion was there. Thank you so much. Maybe you can put it in the chat box also.
If you're not really comfortable coming in a spotlight and asking the question, just put in the chat box. Chat box में आपका सवाल पोस्ट करिए. See, this session is all about you, my dear friends. This session is all about you. This is a question answer session. और आपकी जिंदगी में अभी जो भी चैलेंज है, जो भी डिफिकल्टी है, just ask me that. I will try my best. I'll put my heart and soul to give you the perfect solution for it. So go ahead and ask question. आप privately भी पूछ सकते हैं. I hope you know that. I'm not going to reveal your identity if you're asking me something private. So chill and ask me your question. I'm eagerly waiting for your question, my dear friends. जब भी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूं, I request you to be ready with amazing questions. And trust me, I am not going to feel insulted and all, or annoyed, disturbed because of your weird questions or nothing like that. There is no question as a weird or silly or which is not respectful, nothing like that. You just ask me. Clear whatever doubts you have. Great. So Jitendra sir यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं. Thank you so much, Jitendra sir. You can okay. So let me put Jitendra sir in a spotlight. Yeah, Jitendra ji, go ahead. Unmute yourself. Great evening, sir, and great evening to all. Yeah. My question is how to motivate or encourage people who are already depressed or annoyed or in mental tension actually. Great. देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे लोगों को YouTube के कुछ मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर द वीडियोस विद देम. सी, अभी तो आपने सबकॉन्शियस माइंड के रिगार्डिंग बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया है. यू कैन शेयर दैट. लेकिन कभी कभी कैसे होता है जितेंद्र जी कि हमारा जो करीब का दोस्त है, हम कितना भी जबरदस्त सजेशन देंगे तो हमें टाइम पास में लेता है, राइट? हमें ग्रांटेड पे लेता है. अरे क्या यार, जीतू क्या बता रहा है मेरे को, जीतू तू अभी मेरे को सिखाएगा कैसे करना है. दे थिंक लाइक दैट. तो आपको क्या करना है पता है? आपको शायद मेरा वीडियो या फिर टॉनी रॉबिन्स या फिर जैक कैंटफील्ड या फिर बॉब प्रॉक्टर या फिर विवेक बिंद्रा या फिर संदीप महेश्वरी या फिर बीके शिवानी और या फिर लेस ब्राउन, जो भी आपको जबरदस्त वीडियो लगता है उनके साथ शेयर कीजिए. और आपको कुछ मत बोलना है, मतलब कुछ नहीं बोलना है, जस्ट शेयर दैट. अब कुछ मत बोलिए, ऑटोमेटिकली उनको मैसेज मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो जितेंद्र जी, यू आर द लिविंग एग्जाम्पल. यू जस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट. आपका स्टेटस, आपका डीपी, आपके बात करने का तरीका, ये सब चीजें लोगों को इंस्पायर कर रही है. डू यू नो दैट? दुनिया में बहुत सारे लोग हमें सीक्रेटली फॉलो करते हैं जितेंद्र जी, सीक्रेटली, हमें पता नहीं है. दे कंसिडर अस एज अ बिग और हाईली सक्सेसफुल पर्सन. दे कंसिडर अस एज अ लेजेंड. हमें पता नहीं है और हमें कभी बताएंगे भी नहीं, लेकिन सीक्रेटली हमें फॉलो कर रहे हैं. So you lead from the front. This is the best way to motivate others. Got it? Okay. लेकिन सर सपोज सामने वाला जो पर्सन है बहुत एंग्री होगा, या वो उस मूड में ही नहीं होगा कि जो हमको जो वीडियो दिखाना है उसको या मोटिवेशनल कुछ बताना है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम उसको. Wow, this is again amazing question. Thank you so much जितेंद्र जी for this beautiful question. देखिए जितेंद्र जी, एक तो चीज है कि हम लोग कॉन्शियसली उसको समझाएंगे. कॉन्शियसली मतलब शायद कोई वीडियो शेयर करके या फिर उससे बात करके एंड ऑल. और दूसरा एक तरीका है, ये आप ट्राई करके देखिए. ये शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप ट्राई करके देखिए. आप वो व्यक्ति को ब्लेसिंग्स भेजिए. You just bless that person. You just say, God bless you, 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 God bless you. Just say it from bottom of your heart. Whenever you go for prayers or whenever you do some visualization and all, send lots of blessing to that person and experience the magic. This is the best thing you can do, sir. अगर बंदा कॉन्शियसली नहीं समझ पाता तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसको गाइड कर सकते हैं. और एक चलो मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताता हूं. ये कभी मैंने आज तक शेयर नहीं किया है, बट स्टिल आई विल शेयर यू दैट. एवरीवन इज लिसनिंग ओवर हियर.
जब वो बंदा रात में सो जाता है ना, when that person is sleeping at night, तो उसके बाद उसको आप blessings भेज सकते हैं after sleeping, because after sleeping their resistance to any kind of suggestion is very less, right? Yes. बंदा सो गया है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, वो सो गया है, वो सबकॉन्शियस स्टेट में है, तो उसके सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। तो वो बंदा सोने के बाद, वो व्यक्ति सो जाने के बाद आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं, आप उसके लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उनके लिए मतलब ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं आफ्टर स्लीपिंग। दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, गिव इट अ ट्राई, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। Okay. या Thank you, sir. Great, Jitendra. Thank you so much for your beautiful question. Big round of applause for you, Bhakti ma'am, and you. Amazing question. Thank you. Let me go to another question. So there are so many questions. Just wait. Let me check it out. Wow. So नींद कैसे कम करे? Amazing question. How to reduce the sleep? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, minimum 6 hours you need to sleep. Minimum 6 hours. Don't go below that. It is dangerous. नींद कम करने का एकदम आसान तरीका है, जिंदगी में बहुत बड़ा गोल रखो। If you have a very big goal in your life, you won't sleep for the longer duration. APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में एक कंसेप्ट बताया, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। You get mad behind them. So I would say sleep for minimum 6 hours. Do not try to reduce that time. हाँ, एक कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैंने खुद उसको मास्टर नहीं किया है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बट आई नो दैट कंसेप्ट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एक बड़े लेवल पे गए, स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशंस वगैरह करके अगर आप बहुत बड़े लेवल पे गए, तो आप 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे तो 8 घंटे की नींद आपको मिल सकती है। 1 घंटा प्रॉपरली मेडिटेट करेंगे तो 8 घंटे की नींद मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए। ये 1-2 हफ्ते का कोई कोर्स करके, कोई ऑडियो सुन के नहीं होगा। यू नीड अ लॉन्ग प्रैक्टिस फॉर दैट। सो अभी तक मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, सो आई कांट कमेंट मच ऑन दैट, बट आई हैव हर्ड दैट इट वर्क्स। देयर आर फ्यू पीपल हु हैव बीन वर्किंग सो हार्ड ऑन मेडिटेशन। नरेंद्र मोदी, मैंने सुना है नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 घंटे के लिए सोते हैं, बिकॉज वो बंदा मेडिटेशन वगैरह कितने सालों से फॉलो कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर लास्ट 6 months और 1 year. Yeah. So let me go to the next question. नींद कैसे कम करे के बाद क्वेश्चन है, हाउ टू बी काम व्हेन somebody is annoying us. शांत कैसे रहे? आप जब भी आपको कोई अनॉय करता है, तकलीफ देता है, आप उसको किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर निर्भर है। अगर आप उसको एक पॉजिटिव मैसेज उसके साथ अटैच कर देते हो, पॉजिटिव स्टोरी अटैच कर देते हो, देन यू आर गोइंग टू फील ऑसम। जो ट्रिगर मोमेंट है, जो ट्रिगर आपको मिल रहा है, जो अनॉय कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप अलग वे से देख सकते हो। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मतलब मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। एक बार मैं 10th और 12th का एक मतलब मेरा मोटिवेशन प्रोग्राम था 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और अचानक से वहां पे ढोल ताशा मतलब बहुत बड़ी आवाज में शुरू हो गया। सो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा आवाज था, टू मच डिस्टर्बेंस। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नो व्हाट आई डिड, आई टोल्ड ऑल दो स्टूडेंट्स, अभी आप ये सोचो कि आपको जो परसेंटेज अचीव करने हैं वो परसेंटेज आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, इसलिए बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है, and the celebration is going on outside, and try to enjoy that, try to enjoy that. So this is how you can convert any negative trigger into something positive. So try to give very different message to it. अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बार बार गुस्सा दिलाता है छोटी छोटी चीजों की वजह से, सो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए और खुद को बताइए, ये व्यक्ति मेरे जिंदगी में आया है, मुझे तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, वो मेरे पेशेंस को बढ़ाने के लिए आया है। पेशेंस ये क्वालिटी होती है, गुस्से को कंट्रोल करने की एक क्वालिटी होती है पेशेंस। सो पेशेंस को इंप्रूव करने के लिए ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आके मुझे तकलीफ दे रहा है। सो यू कैन लुक एट इन दिस वे। सो ट्राई टू गिव सम पॉजिटिव
attachment, positive message to that annoying person, and you can get along with that person very beautifully. This is what I can say. There's so many other ways, but this is one of the way. So how to sleep less than around 6 hours and wake up with a full of positive energy? Great. So यहाँ पे एक सवाल आया है, उसका मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने पहले दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को जब आप सोते हैं, व्हेन यू गो टू स्लीप, आइडियली बिफोर दैट, मतलब 2 घंटे पहले आपका खाना होना चाहिए. समझो आप 10 बजे डिनर करते हो तो आपको 12 बजे सोना. So you are supposed to have the gap of around 2 to 3 hours, minimum 2 hours, minimum 2 hours का गैप होना चाहिए. और अपार्ट फ्रॉम दैट, रात का जो भी आपका खाना है, इट हैज टू बी लाइट, इट शुड नॉट बी वेरी हेवी. आपने कंसेप्ट सुना है ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक दिस एंड डिनर लाइक अ पॉपर. मतलब एकदम कम अमाउंट में खाना. अगर आपने रात में हल्ला बोल कर दिया, बहुत खाना खाया, देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर स्लीप. क्यों? बिकॉज रात भर आपकी बॉडी वो डाइजेशन में लग जाएगी, रात भर वो डाइजेशन का काम चलते रहे. सो आई वुड से try to have the light food, and apart from that, you can apply some oil on your head, or maybe on your feet. आपके पैरों को आप जरा ऑयल वगैरह रब कर सकते हैं, by which you can have very peaceful sleep. Maybe you can have a glass of milk also, but make sure after having glass of milk you brush your teeth. Otherwise दांत खराब हो जाएंगे और आप बोलेंगे आपके वजह से दांत खराब हो गए. So brush before that. Yeah. There are so many other techniques also by which you can have the great peaceful sleep, but ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं. And apart from that, see, when you are mad about one project, अगर कोई प्रोजेक्ट के पीछे पागल हो, then you are going to get up, because you know ये काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है, and this is what you should do. और एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ. चलो, जब आप सुबह उठते हो तो आप एक स्टेटमेंट बोलना शुरू कर देना, मन ही मन. Today miracles are going to happen. Today miracles are going to happen. Even if it is a normal day, you still say that. Have a broad smile on your face. Have a broad smile on your face and just say it. Today miracles are going to happen. Today the miracles are going to happen. Today miracles are going to happen. You just expect the best, even if it is very normal and ordinary day. And this is how you can wake up with the energy. Have a broad smile on your face and do that. Very simple technique. So let me go to the next question. So Vedant, I hope you got the answer. Yeah, Vedant, you asked me question for so many times. I hope you got the answer. So yeah, there is one more question. Okay, great. See, when your elders or maybe parents have different perspective, कुछ दूसरा opinion उनका है और उसके वजह से आप negative feel करते हो, so how, or you can't run away from them. How to deal with that? सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा या फिर समझाने की कोशिश करूंगा, जो डिफरेंस है, जो भी उनका ओपिनियन है, प्लीज अंडरस्टैंड वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटी होती है, उसके ऊपर वो कमेंट पास करते हैं और वो सच में नेगेटिव क्वालिटी होती है, एंड वी मस्ट वर्क हार्ड ऑन दैट टू एलिमिनेट दैट. अगर उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम खुद को फंसा रहे वो केस में. वी आर फूलिंग अवरसेल्व्स. सो डोंट डू लाइक दैट. प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी उनका ओपिनियन है जिसकी वजह से आपको नेगेटिव फील हो रहा है, जो उनका ओपिनियन वो असलियत है या फिर इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, whether it is true or it is not that important, try to figure it out. See, I will tell you, I will give you my example. When I left the job of Blue Star Limited and I started working as a motivational speaker and coach, my parents used to say every single day, Sameer, do job, don't do this work. तो दुनिया को बदलने मत जा, दुनिया को जैसे है वैसे रहने दो, जो करना है वो करने दो, तू अपना काम कर, तू पैसा कमा, तू छोड़ दे, ये फील्ड में मत जा, तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. इतना अच्छा खासा तुझे सैलरी मिल रहा है, एवरी मंथ यू आर अर्निंग रियली वेल, व्हाई यू आर लिविंग सच अ ग्रेट जॉब. सो वो मोमेंट पे वो मैंने नेगेटिवली फील नहीं किया, बिकॉज वो उनका ओपिनियन था. आई वॉज हैविंग फुल अवेयरनेस, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें आगे चल के क्या होने वाला है, and I'm experiencing that.
सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो उनका ओपिनियन है. मे बी यू कैन टॉक विद देम. अगर वो जो भी ओपिनियन दे रहे हैं अगर वो गलत है, यू जस्ट टॉक विद देम एंड ट्राई टू क्लियर दैट. डोंट हैव द नेगेटिविटी इन योरसेल्फ. देखो, नेगेटिविटी आपके अंदर तब तक जा नहीं सकती जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते. जैसे समुद्र में एक जहाज होता है ना, जो शिप होता है, उसके अंदर पानी तब तक नहीं जाता जब तक उसमें कोई होल ना हो. प्लीज अंडरस्टैंड. सो until and unless you are not allowing that, no one can hurt you. अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं जा सकती. सो मेक श्योर you do not allow it to go inside and talk to them. Clear that concept. Or maybe you can take it as an energy. आप उनको wrong prove करने के लिए आपकी जान लगा दो. If you feel like no, you are so perfect, then make sure you put your heart and soul to prove them wrong. This is what you should do. So let me go to the next question. वाह. सो ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हैं. तो ग्रैटिट्यूड जब आप लिखते हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. ऑब्वियसली जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा तभी भी आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम कर सकते हैं, ग्रेटफुल एटीट्यूड में जा सकते हैं. नथिंग रॉन्ग. बट मोर देन दैट, व्हेन यू राइट, इट इज फिनोमिनल. सो आई वुड सजेस्ट यू राइट ऑल्सो. सो सक्सेस सॉन्ग और अफर्मेशन में इमोशंस कैसे डालें? जस्ट इमोशंस आपको एक्टिंग करनी है. You have to act like that person. सक्सेस मिलने के बाद जो मजा आने वाला है, you need to create that. It's a pure acting, my dear friends, pure acting. आपने कितने बार जिंदगी में एक्टिंग की है? Right or wrong? You have done acting so many times. किसी को कन्विंस करते समय, किसी को घुमाते समय, you have done it so many times. Why don't you do it for yourself, for your own success? You need to feel that. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक मूवी है, one movie going on and you got that role. There is one movie going on and you got one role of a successful person. So how you going to behave? So you just feel like that कि कोई कैमरा है जो आपकी शूटिंग कर रहा है. There is one secret camera which is shooting you and you just act like that person, and this is how you can put the emotions into that. So acting करना बहुत जरूरी है. सो मैं आपको सो यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना अच्छा है क्या? नहीं, ये आपने जो क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन देखो, एक कॉमेडी शोज वगैरह है तो बहुत बार क्या होता है, वहां पे नेगेटिव जोक्स क्रैक करते हैं, वहां पे नेगेटिव जोक्स, नेगेटिव सीन्स क्रिएट करते हैं. सो आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम इट. आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कुछ इंस्पिरेशनल वगैरह देखिए, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल. बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है स्टैंड अप कॉमेडियंस है, मतलब कपिल शर्मा है या फिर बहुत सारे जोक्स हैं, उसमें बहुत सारे जोक नेगेटिव होते हैं. सो नेगेटिव जोक की वजह से आप हंस तो लेते हो, बट अगेन इट प्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड. तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रोग्राम्स which are negative in nature. जोक्स वाले प्रोग्राम्स है लेकिन स्टिल दे क्रैक द नेगेटिव जोक्स on husband wife or something like that, or maybe on corona or something like that. ग्रेट. सो अगर आप, यहाँ पे सवाल है, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हो और वो टाइम पे अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो उसको कैसे हम लोग डील करें? बहुत आसान है यार. मैंने आपको कहा कि आपको पेन को पावर में कन्वर्ट करना है. चलो मैं एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, दैट इज स्माइल. चलो अभी जो भी लोग यहाँ पे मुझे लाइव सुन रहे हैं, प्लीज स्माइल. प्लीज हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस एंड थिंक नेगेटिव. नाउ थिंक नेगेटिव. हैव अ ब्रॉड स्माइल एंड थिंक नेगेटिव. Have a broad smile on your face and think negative. Please think negative now. Is it possible? Tell me it is possible. It is not possible to think negative when you smile. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो एकदम वियर्ड बिहेवियर वाले होते हैं, जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं, हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस. सिंपल. बिकॉज आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते, आप ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो. यू कैन कंट्रोल दैट. यू कैन कंट्रोल ओनली योरसेल्फ. माय डियर फ्रेंड्स, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. लेट मी रिपीट, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. इफ यू स्माइल, you can't have negative thoughts. Yeah,
You just can't have negative thoughts. So this is how you can manage with such kind of people. And I would suggest you can watch my video how to deal with pathetic people. I made one proper webinar on that. You can search on Google or just put me a message on WhatsApp. I will share the link. Wow, so there is amazing question. सोने के बाद अगर हमने अफर्मेशन सुनने की कोशिश की रिकॉर्डेड ऑडियो, क्या ये काम करता है? 100% ये काम करता है. इट वर्क्स बिकॉज रात को समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड में रखिए. डू नॉट कीप योर मोबाइल इन अ नॉर्मल मोड. नॉर्मल मोड में रखेंगे और सर के बाजू में अगर मोबाइल रखेंगे या फिर नजदीक रखेंगे, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर हेल्थ. सो प्लीज पुट योर मोबाइल, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड डिवाइस वगैरह है, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस, तो कोई डिवाइस आपके पास है तो बात अलग है. लेकिन अगर आपके मोबाइल के थ्रू आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सो पुट योर मोबाइल इन फ्लाइट मोड फर्स्ट एंड देन कीप योर मोबाइल जस्ट नियर बाय योर ईयर. आपके कान के आजू बाजू में रखिए. कीप द वॉल्यूम वेरी लो. देयर इज नो नीड टू कीप द हायर वॉल्यूम. आपके सबकॉन्शियस माइंड को कम से कम आवाज भी सुनाई देगी. एंड जस्ट गो टू स्लीप. यू कैन डेफिनेटली प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. And on YouTube also there are so many audios जो 8 घंटे के लिए चल सकते हैं. 8 hours long. Yeah, sleep affirmations और या फिर sleep sound or something like that. So you can go for that also. और simple, you can go for your own affirmation. और आपके जिंदगी के सपने हैं, सक्सेस सॉन्ग है, वो रिकॉर्ड करके भी आप चला सकते हो. That is also possible. So let me go to the next question. Wow, so there is an amazing question. How visualization technique is more effective during full moon day? आपको पता है ना, फुल मून डे को मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, ये टाइम से ये टाइम फुल मून डे है, ये कीजिए वो कीजिए. देखिए अभी थोड़ी दिन पहले फुल मून डे होके गया और उस दिन गुरु पूर्णिमा, ये एक फेस्टिवल था, राइट. उसके पहले था इन द मंथ ऑफ जैन वट पूर्णिमा था. यू नो, मतलब बैनियन ट्री को राउंड्स करते हैं, सो वो था. उसके पहले बुद्ध पूर्णिमा था. सो क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? और अभी थोड़े दिन बाद जो फुल मून डे आने वाला है, उस दिन क्या है? उस दिन राखी पूर्णिमा है. इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि हर एक फुल मून डे को हमारे एंसेस्टर्स ने, जो भी है, गॉड ब्लेस देम, उन्होंने कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल रखा है. कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल रखा है. क्यों? बिकॉज जब फुल मून डे होता है, हम सब के अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है. मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अंदर की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है. इसलिए उस दिन मेडिटेशन करना, विजुअलाइजेशन करना बहुत फायदेमंद होता है. आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देता है. कितने सारे ग्रुप्स है, आई नो मेनी ग्रुप्स हु फॉलो मेडिटेशन स्पेसिफिकली ऑन दैट डे. मतलब इकट्ठा आके, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कभी, आई विल गिव यू द एड्रेस आल्सो. आई डोंट नो अभी वो करते कि नहीं, लेकिन लॉकडाउन के पहले वहां पे हर फुल मून डे को उनका मेडिटेशन होता है. प्राणिक हीलिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राणिक हीलिंग. उनका नेहरू साइंस सेंटर में, वर्ली, नेहरू साइंस सेंटर, नॉट नेहरू साइंस सेंटर, आई एम सॉरी, नेहरू प्लानिटोरियम, आई गेस इट इज नेहरू प्लानिटोरियम. तो वहां पे उनका मतलब एक बहुत बड़ा हॉल वो बुक करते हैं, और वहां पे मुझे लगता है 100-200 लोग रहते हैं, 100 to 200 people, and they do meditation together. And hence on the full moon day it is very important to do it. सोचो यार, मतलब जो हाई टाइड लो टाइड, ये जो कंसेप्ट हमें पता है, जो सी में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हाई टाइड लो टाइड, you know, because of what it is happening? It is happening because of gravitational force of a moon. It is happening because of gravitational force of a moon. We have studied that. Think about it now. Your body has 70% water. I hope you know that. Your body has 70% water. मतलब जिस दिन फुल मून डे होगा, उस दिन आपके बॉडी में क्या हो रहा है? Your energy is going at the peak. And let me tell you, moon is nothing but your mind. Moon has been compared by many people to mind. So your energies are at peak, so make most of it. And hence, I always remind you to do something phenomenal on the day of full moon day. Yeah, I hope you got the answer. Amazing question. Thank you so much.
Okay, so there is one more question. Let me check it out. वाह, सो कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की वजह से नहीं, खुद के वजह से बहुत गुस्से में जाते हैं. हमसे कुछ गलतियां होती है, उसकी वजह से गुस्सा आता है, तो क्या करें? सो ट्राई टू स्माइल अगेन, हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस एंड ट्राई टू टेक लेसन फ्रॉम इट. या ट्राई टू टेक लेसन फ्रॉम इट and try to bounce back. This is the best thing you can do. What else you can do? Try to convert that pain into power, but do not do it negatively. आपको मैं बताना चाहता हूँ, गुस्सा ये बुरी चीज नहीं है. अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो गुस्से को, वो एंगर को आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन कन्वर्ट दैट एंगर इनटू पावर, यू कैन कन्वर्ट दैट पेन इनटू पावर. बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया है बिकॉज कभी तो उनको किसी ने गुस्सा दिलाया था, या फिर खुद से गुस्सा हो गए थे, मे बी अनहैप्पी विद देमसेल्व्स. सो ट्राई टू यूज दैट एज अ फ्यूल. फ्यूल की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ विराट कोहली ओवर हियर. विराट कोहली आई गेस इन 2012 ऑस्ट्रेलिया टूर से रिटर्न आ गया और उसके घर में वो मतलब उसने बात लिया and he was standing in front of a mirror. When he was standing in front of a mirror and his body was out of shape, पेट बढ़ रहा था, बॉडी आउट ऑफ शेप जा रही थी, तो उस दिन उसे बहुत गुस्सा आया खुद के ऊपर. उस दिन से उसने डिसीजन लिया कि वो अभी खुद को स्लिम एंड ट्रिम रखने के लिए जान लगा देगा. उसके बाद पता है उसने 3 महीने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया था. कभी कभी तो उसको सिर्फ चना खाने का परमिशन रहता था. और आपको पता है कि वो पंजाब दिल्ली में रहता है, तो वहां पे जो विंटर का सीजन होता है, तो वो टाइम पे उसको इतना तकलीफ होता था, लिटरली वो बेडशीट होती है ना, बेडशीट, वो उसके मुंह में डाल देता था उसके भूख को दबाने के लिए. And this is how he converted his anger into power. And you know how Virat Kohli is right now in the terms of fitness. So this is what you need to do. Even if you're angry on yourself, try to use that anger to fuel your success. Great question. Thank you so much. So let me go. Wow. So any technique to go in a thoughtless state of mind? Yeah, it is possible. Just focus upon breathing. Just focus upon breathing. See, if you focus upon breathing, you will realize you are in a thoughtless state. And apart from that, when you follow area of your passion, जो काम के पीछे आप पागल हो, you love that, you will go into thoughtless state. Dr. Yogesh, I would suggest, अगर मतलब अभी आपको ट्रेकिंग को जाने का मौका मिलता है, you go for trekking or mountain climbing. You will realize while going for the trekking, you are completely focused on each step. आप हर एक स्टेप के ऊपर फोकस्ड हो. You know why? Because एक भी स्टेप गलत तो आप नीचे. So that is also the kind of meditation. That is also the kind of meditation. You are in a thoughtless state. Or else you can just, if you want to experience it at home, then just focus upon your breathing. So इतना आसान नहीं है कि breathing के ऊपर फोकस करेंगे तो immediately thoughtless state में जाएंगे. But at least if you start doing that practice, you will go in that state for sure. I would suggest एक वीडियो है, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, उसका नाम बताता हूँ, स्पिरिचुअल रियलिटी. Just go on YouTube and search spiritual reality. तो वहां पे मेडिटेशन कैसे करते हैं, थॉटलेस स्टेट में कैसे जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन किया है. स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी. यू कैन पुट स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी. इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन वॉच इन इंग्लिश. आई होप यू गॉट द आंसर. लेट मी go to the next question. Yeah. वाह. सो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है. अगर कोई इंसान है जो गलत काम करता है, जैसे मतलब ब्राइबिंग है या फिर कुछ गलत काम उससे होता है सिर्फ पैसों के लिए, तो क्या एक तो वो इंसान इतने बड़े लेवल पे होता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते. अगर उसे हम कुछ बोलने जाएंगे तो हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हमें उसको संभालना कैसे. देखो, ऐसे इंसान जब हमें दिखते हैं, यू हैव टू सिंपली सेंड देम द ब्लेसिंग्स. आपको उनको ब्लेसिंग्स देनी है, आपको उनको ब्लेसिंग्स देनी है. बिकॉज उनके बारे में आप ज्यादा सोचोगे तो आपको तकलीफ होगी, यू विल फील बैड. तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप उनको नेगेटिव वाइब्रेशन भी दे रहे हैं और आप भी खुद नेगेटिव है.
So instead of that, you just send them the blessings, because when you transfer the blessings, you will also feel dynamic and they will also get great and amazing amount of energy. So this is the best thing you can do. Send blessings to such kind of people. और मे बी अगर आप स्मार्टनेस से, अगर आपको पॉसिबल है, इट इज रिस्की अगेन, इफ यू नो द मच मोर हायर ऑथोरिटी, यू कैन ट्राई टू गिव देम द फीडबैक. उनको आप फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका नाम गुप्त रहे, ये आपको केयर करना जरूरी है. अदरवाइज यू विल बी इन अ बिग ट्रबल. या सो यू नीड टू टेक केयर फॉर दैट. Yeah, I'm going to allow, keep your hands up. Okay, आपके हाथ आप नीचे मत लीजिए. If you have any question, just raise your hand. I can see that. I will put you in a spotlight. Just give me a few seconds. Let me check few questions over here. So Kavi, if you have any question, just keep your hand there. I can see. So let me go to the next question. Wow. So what is the motivation to doing exercise daily? I do it for a week. Okay, it's left again how to be consistent. Okay, तो देखो, आपकी जिंदगी का जो अल्टीमेट मिशन है, अल्टीमेट टारगेट है, उसको आप आपके सामने रखो, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक अ डे एट अ टाइम. डू नॉट लुक एट इट, मुझे 6 महीने के लिए कंटिन्यू करना है, 1 साल के लिए करना है. नो, टेक अ डे एट अ टाइम. And maybe you can have the accountability partner. Accountability partner का मतलब क्या है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद मे बी कहीं पे तो फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं, या फिर एक आप ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर दीजिए, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज डेली फॉर 100 days. सी आई नो फ्यू पीपल, दे डू लाइक दिस. उनको पता है कि उनका डिसिप्लिन नहीं रहने वाला, तो सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस कर देते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज फॉर 100 days, एंड फॉर ईच डे दे शेयर द फोटोज, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, बिकॉज उनके ऊपर अभी प्रेशर आ गया है. their reputation at the stake, and hence they do that. So this is also one of the technique if you are comfortable, or else you can have one partner जो आपको पुश करते रहेगा, उसका भी वही टारगेट है, आपका भी वही टारगेट है. This is what you can do. Or maybe you can join a group. If you know a group who is doing that, then automatically it's very easy for you. So try to find such kind of group. So these are few techniques you can use whichever you like. And apart from that, please visualize. Please visualize every night before going to sleep that you exercise every single day. So it will help you to develop that habit. Okay, now is the time for Kavi. Go ahead and ask your question, Kavi. I'm unmuting you. Go ahead, unmute yourself. Sir, I have a question. Yeah, go ahead. So before some time you said that smiling and negative thoughts can't come together in your mind. So when someone tells negative about you, you should just smile. Yeah. But so when someone tells negative, you can't smile only. No. You have to learn that. I know it is not that easy. Have you seen one movie? I guess that movie was Munna Bhai MBBS. In that movie, वो एक डीन होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है, जब भी कुछ नेगेटिव होता है या फिर उसको गुस्सा आता है, वो हंसना शुरू कर देता है. डू यू रिमेंबर दैट? सो आपको उसकी तरह वियर्ड स्टाइल में नहीं हंसना है. यू आर सपोज टू जस्ट स्माइल. यू आर सपोज टू जस्ट स्माइल, एंड मे बी विद इन योर हार्ट, अगर आप उसके सामने स्माइल नहीं कर सकते, इन दैट केस यू कैन सेंड देम द ब्लेसिंग्स. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. बिकॉज जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है वो खुद तकलीफ में है. प्लीज अंडरस्टैंड. The person who is trying to trouble you or trying to be not great with you, that person is in big trouble. See, I said it many times, amazing quote, hurt people. जो बंदा खुद हर्ट है वही दूसरों को हर्ट करता है. So ऐसे बंदे के साथ झगड़ा करके उसको समझाने से कुछ फायदा नहीं है. Just send them the blessings. This is the best thing you can do. You can just say thank you to them, thank you, God bless you, and you should move on. I know it is that easy, but for your own well-being, you need to learn that. Yeah, amazing question. Thank you so much. Thank you. Yeah. So Bhakti ma'am, do you want to ask me something? You raise your hand. You can maybe turn on your video if you really want to ask. Yeah, great. So I'm putting you in a spotlight. Go ahead.
Unmute yourself. एक्चुअली फुल मून डे के बारे में मुझे पूछना था कि आई हैव हर्ड और इवन आई हैव ऑब्जर्व दैट फुल मून डे जब होता है तो किसी को ज्यादातर लोग मतलब उस दिन हार्ट अटैक आता है या मतलब दे Right. डाई. सो मतलब क्या है इसके पीछे, या इट्स अ हेल्थ, या उस दिन कोई नॉनवेज नहीं खाता ज्यादा तो. या देखो कैसा है कि जो फुल मून डे होता है तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है. कैन यू हियर मी? आई गेस Yes, माय yes. ऑडियो इज Yeah, परफेक्ट. yeah. या Yes, yes. व्हाट आई एम Now, टेलिंग यू, जब फुल मून डे होता है तो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है. और हमारे एंसेस्टर्स ने उस दिन कुछ ना कुछ तो त्योहार रखे हैं ताकि हमारी एनर्जी वहां पे चैनलाइज हो जाए. एनर्जी बढ़ी है तो किधर तो चैनलाइज होना जरूरी है, किधर तो कन्वर्ट होना जरूरी है. इसलिए कुछ ना कुछ तो त्योहार रखे हैं, कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल्स रखे. तो आपको उस दिन मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके वो एनर्जी को डाइवर्ट करना है. यू नो, आइडियली यू शुड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट ऑन फुल मून डे. फुल मून डे के दिन एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, तो उस दिन जो भी नया काम आपको करना है यू कैन गो फॉर दैट. If you want to write a book, or if you want to start a new habit, or if you want to do something phenomenal, go for that day. That's a really powerful day. And channelize that energy. और जो बंदा एनर्जी को चैनलाइज नहीं करता तो वो केस में वो एनर्जी कुछ अलग फॉर्मेट में उसको तकलीफ दे सकती है. okay, Yeah, so this is the reason for that. okay. Thank you so much for asking this question. Amazing. Yeah. So let me go to the next question. There are so many questions in the chat box, my dear friends. I'm coming to those. Just wait. Yeah, and I request you to don't ask question. It is almost time up right now. Yeah, so let me go to the next question. Sir, is it good to have attachment towards materialistic things and also to have them in our life, like good house, good phone, laptop, and also visualize about that? Because many saints and gurus tell us that don't have such mindset. ओके, तो देखिए, आपकी जिंदगी के जो भी टारगेट्स है या फिर जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको, उसके लिए आप डेफिनेटली विजुअलाइज कर सकते हैं. यू कैन प्रे फॉर दैट एंड ऑल. बट आपको अटैचमेंट इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए आप कुछ गलत काम कर बैठो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बार क्या होता है, लोग वो टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब अच्छी कार, बंगला या फिर कुछ मोबाइल या फिर जो भी है, वो ब्राइब लेते हैं. भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है? बिकॉज लोगों ने खुद के सपने बहुत बड़े करके रखे हैं. बड़े बड़े घर उनको लेने हैं, फॉरेन ट्रिप को जाना है, तो पैसा आएगा कहां से? इसलिए वो कुछ गलत काम कर बैठते. लेकिन आप गलत काम नहीं करना चाहते और अच्छी तरह से मेहनत करके अगर वो टारगेट को अचीव करना चाहते हो, सो नथिंग रॉन्ग इनटू दैट. नथिंग रॉन्ग इन, ट्रस्ट मी, टू एंजॉय योर लाइफ, नथिंग रॉन्ग. बट यू शुड नॉट हर्ट अदर्स. यू शुड नॉट डू एनी अनएथिकल थिंग फॉर दैट. बहुत लोग उसमें फंस जाते हैं और वो आपसे ना हो, इसलिए संत महात्माओं ने ये चीजें हमें कही है. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू रियली वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, इन योर जॉब, इन योर करियर, योर प्रोफेशन, ट्रस्ट मी, ये सब चीजें हैं, जो घर है, गाड़ी, बंगला, ये ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने कभी मतलब मेरे अकाउंट पे 10,000 करोड़ आ जाए, 5,000 करोड़ आ जाए, इसलिए कभी विजुअलाइज किया होगा. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. उन्होंने उनके सक्सेस के लिए विजुअलाइज किया, मतलब उनका जो परफॉर्मेंस है वो टॉप लेवल पे जाए, इसके लिए विजुअलाइज किया है. प्लीज अंडरस्टैंड. तो आपको कहां पे फोकस करना है? आपको आपके परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है. तो बाकी की चीजें तो बाय प्रोडक्ट है. See, I want to have MacBook Pro and iPhone or maybe amazing car, but I'm not visualizing that. I'm just focusing upon my task. I'm visualizing that I'm creating success stories. आप सबकी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी बन रही है. You know, every day I visualize for all of you. Every day I visualize for all of you. I pray for all of you because I really want your success. Because once you achieve success, then I am going to be successful. So this is what you should do. Nothing wrong into that. Still you can visualize. Still you can visualize whatever you want, but make sure you don't indulge yourself in anything wrong. There is a important concept.
Wow, so it's an amazing question. How to improve bonding with my spouse? आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको बॉन्डिंग इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए? द आंसर इज क्वाइट सिंपल. अगर आप सामने से जाके उनको आई लव यू कह सकते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ऑसम, ग्रेट. सो दिस इज हाउ यू कैन have the great bonding, because everyone is hungry for appreciation and love. Everyone is hungry for appreciation and love. लेकिन समझो आपकी मतलब बॉन्डिंग इतनी खराब हो चुकी है कि अभी ये करना आपको पॉसिबल नहीं है. उनको क्या चीज पसंद है, नहीं पसंद है, अगर वो सब करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन जस्ट सेंड द ब्लेसिंग्स टू देम. दिन में 3 बार उनका फोटो आप आपके हाथ में रखिए या फिर मोबाइल में उनका फोटो रहेगा, उनको ब्लेसिंग्स भेजिए. गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट. Appreciate them. Even if you appreciate them virtually, it is going to work. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उनके साथ पर्सनली वो जाके अगर आप उनसे बातें करेंगे, उनको जो चीजें पसंद है वो अगर उनके लिए आप करना शुरू कर देंगे, you will have a fantastic bonding. So try to find what is best for them. मतलब उनको क्या अच्छा लगता है, what they like, and just try to do that. Very simple. Wow, amazing. So strangest secret in the world by Earl Nightingale. Amazing audio, amazing audio. Listen to it every single day. Listen to it every single day. This is amazing audio. Even I sometimes listen to that. I don't listen it regularly, but I used to listen. I got the message and I'm listening to other audios also. So it's amazing audio. Go for that, Rishikesh. Amazing. I really appreciate that. So let me go to the next question. How to handle a complicated person? So simply bless them. With the blessing, you can handle them. Amazing, amazing, amazing question. Thank you so much, everyone. I really appreciate all the questions you asked. Still, we have 4 minutes. Last one question, if you want to ask. Last one question, if you want to ask. You can raise your hand or maybe you can put it in the chat box. You can raise your hand or you can put it in the chat box. Great. So Jitendra ji has raised the hand. So today's last question, let me put him in the spotlight. Yes, Jitendra ji, go ahead. Thank you. Sir, my question is, what is the right age for learning the concept of subconscious mind or motivational process actually? Amazing. Thank you so much for this fantastic question. Actually, जो belief system है ना, belief system, वो actually 15 to 25 में बहुत rigid बन जाती है. मतलब 15 to 25 में वो formation में होती है. तो वो टाइम पे अगर किसी ने ये सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स को वगैरह फॉलो किया, इट वुड बी रियली ऑसम. बट आइडियली देखा जाए तो हम लोग सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को जन्म से पहले ही फॉर्म कर सकते हैं. गर्भ संस्कार, आपने कंसेप्ट सुना होगा गर्भ संस्कार. सो दैट इज नथिंग बट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. सो तब से हम लोग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन वो कैसा रहेगा, वो इनडायरेक्ट प्रोग्रामिंग है. इनडायरेक्ट मतलब वहां पे वो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं रहेगा. लेट मी टेल यू, टिल एज 14-15 जो स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं, उनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आते. इवन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम, दे डोंट अंडरस्टैंड इट इन अ डेप्थ. They can't do it with the awareness. Exceptions are always there. There are few students, they are very matured. See, you can see the Kavi, Kriya, very matured. They are just 12-13 right now, but very, very matured. So ऐसे बहुत कम होते हैं बच्चे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को मतलब जो अवेयरनेस आता है वो 15 के बाद आता है. So they can do it on their own. After 15, they can do it on their own, but before that, you can program it indirectly. और गर्भ संस्कार मतलब वो जन्म होने से पहले, तब से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है. एंड लेट मी टेल यू, लेट मी गो इन मच मोर डेप्थ. जो हस्बैंड और वाइफ है जो प्लानिंग कर रहे हैं एक बेबी के लिए, अगर वो खुद को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी तो वैसे ही आएगा. उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एकदम डायनेमिक होगा, एकदम पावरफुल होगा. सो हस्बैंड और वाइफ को पहले ही उसको शुरुआत करना जरूरी है ये सब कंसेप्ट्स को. या amazing question. Thank you so much. Fantastic. Thank you. Yeah.
चलो और एक सवाल ले लेते हैं. There is one more question I can see in the chat box. Okay, so you already asked me gratitude के बारे में. Already मैंने कहा है कि जब आपको free time रहेगा, see suppose you are traveling, walking and all, so that point of time you can just think about it. जो चीजें आपके पास है, you can feel that gratefulness. But if you have proper time, if you are sitting at one place, if you can write that, it would be really awesome. It would be really awesome because writing is going to help you a lot. Amazing, amazing. So there is a great appreciation from one of the participants. Thank you so much. Thank you so much, Aditi, for your appreciation. Thank you so much. So that's it from my side, my dear friends. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू शेयर यू द लिंक ऑफ दैट. आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद मोर एंड मोर पीपल. शायद इसमें जो भी मैंने कुछ आंसर किया है किसी के काम आ जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए और वो इंसान आपको ब्लेसिंग्स देगा. That person will bless you. And I always tell everyone, go for blessings. If you try to collect more and more blessings, then automatically rest of the things, the challenges you have, going to disappear from your life. So thank you so much for asking me fantastic question. Yeah. So that's it from my side. That's it from my side. God bless you. Enjoy and take care.